نان فائلرز بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے، ایک حد سے زیادہ ٹرانزیکشنز نہیں کر سکیں گے، 800 سی سی سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ حکومت نے نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری کر لی۔ ٹیکس لا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش، مجوزہ ترمیم کے مسودے میں کہا گیا کہ نان فائلر مخصوص حد سے زیادہ جائیداد اور شیئرز نہیں خرید سکیں گے، جائیداد بھی ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے، غیر رجسٹرڈ افراد کاروباری افراد جائیداد ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے، بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے، ایسے افراد کی پراپرٹی اور کاروبار حکومت سیل کرنے کی مجاز ہوگی۔ فائلرز کے والدین، بیوی اور 25 سال تک کی عمر کے بچے فائلر تصور ہوں گے۔ مرغی اور دال مڈل مین کی وجہ سے مہنگی ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مہنگائی ہونے کا اعتراف کر لیا، کہا دنیا بھر میں قیمتیں کم ہوئی، ہم بھی مانیٹر کریں گے، عوام کو جو فائدہ پہنچانا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ رہا۔ آج ای سی سی اجلاس میں پہلا ایجنڈا قیمتیں کم کرنے پر ہوگا۔ برآمدی شعبے میں مثبت رجحان ہے، معاشی میدان میں اہم کامیابیوں کا سلسلہ جاری، ٹھوس اقدامات کے ذریعے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن، یقین ہے ترسیلات زر 35 ارب ڈالر سے بڑھ جائیں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 3790 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,12,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا، 1,11,070 پوائنٹس پر بند ہوا۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں ملک آگے چلے اور ترقی کرے، مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے گا، سیاسی استحکام اور ملکی ترقی کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل، بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی اسیروں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ پارلیمانی پارٹی نے پنجاب میں ارکان پارلیمنٹ کے گھروں اور ڈیروں پر چھاپوں کی مذمت کی، کہا ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی پر دباؤ ڈالنا بند کیا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی۔ ایاز صادق نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کے مذاکرات کے لیے میرا دفتر اور گھر ہر وقت حاضر ہے، تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہے، سیاسی مسائل سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسپیکر کی پیشکش خوشائن ہے، وہ حکومت کو بھی سنجیدگی دکھانے کا کہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں کل کی پیشکش پر حکومت نے ہمیں کوئی جواب دیا نہ رابطہ کیا، 10 ارکان اسمبلی پر استعفے کے لیے دباؤ ہے، یہ چاہتے ہیں پنجاب میں انہیں پیپلز پارٹی کی ضرورت نہ رہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نظر نہیں آ رہا، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ سول نافرمانی کی تحریک دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے کہنے پر موخر کی، حکومت سنجیدہ نہ ہوئی تو اپنا نقصان کرے گی۔ شیر افضل مروت بولے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی ہے، مذاکرات بھی ہونے چاہیے، سول نافرمانی تب شروع ہوگی جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ ایکس ہو، وائی ہو یا زد، فل سپیڈ میں انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا؟ حکومت نے ملک میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا، پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل انٹرنیٹ کی سست رفتار پر برہم، قومی اسمبلی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش پر بحث، وزیر مملکت آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے ایکس بندش کی حمایت کر دی، کہا کہ وزارت داخلہ کی ہدایت پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کیا، نیشنل سیکیورٹی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ملک میں 2% سے بھی کم لوگ ایکس استعمال کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے پر پابندی مقصود ہوتی تو ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری مشاورت کے لیے مؤخر کر دی۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی، شہباز شریف کا کہنا تھا انسانی اسمگلنگ دنیا بھر میں ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے، انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم 3 روزہ سرکاری دورے پر مصر روانہ۔ جب تک اسلحہ جمع نہیں کیا جاتا سڑک نہیں کھلے گی، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کرم میں بنکرز اور جدید اسلحہ کو ختم کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے میں ہچکچا رہے ہیں۔
बंकर्स को मस्मार करेंगे, जिसके बाद फोर्सेस कानून नाफिज करेंगी। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। पारा चनार का मसला पूरे मुल्क के लिए अहम है। हुरिकेन से मिलने पारा चनार जा रहा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, हो सकता है वहाँ की हुकूमत सियासत में मसरूफ हो, मेरे लिए उनके बानी से ज्यादा पाकिस्तान का मुस्तकबिल अहम है। मसला पाकिस्तान का है तो क्या गंडापुर और क्या कुंडी, सबके पास जाऊंगा। सियासत से हटकर किसी ढाबे पर भी बैठ सकते हैं। साफी ने पूछा, आपके जाने की इतनी खबरें आती हैं मगर आप जा नहीं रहे। कामरान टिसोरी बोले, भेजने वालों से ज्यादा मोहब्बत रोकने वालों की है। घोटकी खैबर पख्तूनख्वा की कई इजलास से बेहतर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का घोटकी बार की तकरीब से खिताब, कहा जो वादा किया है उसको पूरा करूंगा। बार एसोसिएशन के तहफ्फुज़ात जल्द दूर किए जाएंगे। वकला की जानिब से तालियां बजाने पर कहा, जजेस के लिए तालियां ना बजाएं, जजेस ठीक होते हैं, आप उन्हें खराब कर देते हैं। कराची में तेज रफ्तार ट्रक ने एक और शख्स की जान ले ली। ICI पुल पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। जाम बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद हुमायूं के नाम से हुई। सुबह कॉलोनी में भी गाड़ी की टक्कर से बच्चा जान से गया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो कहते हैं, शहर में हर दूसरा हादसा जानलेवा साबित होता है। हादसात से बचाव के लिए सुबह 6 से रात 11 बजे तक डंपर चलाने पर पाबंदी लगा दी। 57% हादसात में मोटरसाइकिल सवार जाम बहक होते हैं। पाकिस्तान के चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की कमीशनिंग तकरीब रोमानिया की बंदरगाह में हुई। मेहमान खुसूसी वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी थे। पाकिस्तान के सफीर अरशद जान पठान भी शरीक हुए। PNS यमामा कसीरुल मकासिद और इंतहाई सबक रफ्तार जंगी बहरी जहाज है। टर्मिनल डिफेंस सिस्टम, जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी शिप और एंटी एयर वॉरफेयर सलाहियतों का भी हामिल है। पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों का जवाब देने की जरूरत है। अमेरिका वाज़े कर चुका है कि किसी भी इंतखाबी बेज़ाब्ती की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत पर जोर दिया है, अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश के जुर्म में एहतसाब होता देखना चाहते हैं। तर्जुमान ने BJP के भारत को गैर मुस्तहकम करने के इल्जामात को मज़ाक़ खेज करार दिया। बानी पीटाक के लिए इंटरनेशनल लॉबी काम कर रही है। इनकी कोशिश है कि किसी तरह अपने एजेंट को पिंजरे से निकाला जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, खबरें आ रही हैं कि इनका एजेंट भी कोशिश कर रहा है डील और मुआफी तलाफी हो जाए और बाहर निकले। शर्जील मेमन ने कराची के रंगी में BRT येलो लाइन बस डिपो का इफ्तिताह कर दिया। तंजीमात मदारिस और JUI को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं। मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत सियासी अखलाकी कानूनी तौर पर हार चुकी है। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती का तकाजा है, पास करदा बिल को कानून तस्लीम किया जाए। पार्लियामेंट के फैसले कोई और न करे या हुकूमत तस्लीम कर ले, अवाम का राज नहीं। गेंद हुकूमत की कोर्ट में है, फैसला करें वरना देर हो जाएगी। पाकिस्तान ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को पिछाड़ दिया। पहले वनडे में 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। सलमान अली आगा की शानदार बॉलिंग के बाद करियर की बेस्ट बैटिंग। 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की नैया को पार लगा दिया। ओपनर साइम अयूब की सेंचुरी, 109 रन स्कोर किए। सलमान आगा ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड साइम अयूब को दे दिया। सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आराम से फजूल का सिंगल नहीं लेना। इस बॉल पर चौका हो जाए तो मजा आ जाए। नसीम शाह और आगा सलमान की मैच के दौरान दिलचस्प गुफ्तगू के सोशल मीडिया पर चर्चे। इख्तितामी ओवर्स में नसीम के आगा को मशवरे, आगा सलमान का नसीम पर गुस्सा, सब स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हो गया। फैंस ने मैच के साथ दोनों की बातें भी खूब एंजॉय की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के सरबराह और सऊदी नायब वजीर खेल से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान आने की दावत दी। सऊदी खिलाड़ियों को तरबियत देने की भी पेशकश की। कहा, क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए प्लेयर्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है, दावत पर खुशी होगी। कौमी असम्बली में नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल कसरत राय से मंजूर।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिल पेश किया। बिल के मुताबिक फॉरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कायम किया जाएगा। फॉरेंसिक के लिए बैरूनी मुमालिक पर इन्हिसार को खत्म किया जा सकेगा। डिजिटल फॉरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मामलत करेगा। लैब और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। एजेंसी डिजिटल फॉरेंसिक मवाद को महफूज बनाएगी। फॉरेंसिक एजेंसी बतौर माहिर अदालत की मामलत के लिए भी खिदमत देगी। ओगरा की जानिब से गैस की कीमत में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीर आजम ओगरा के जालिमाना फैसले का फौरी तौर पर नोटिस लें। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का मुतालबा। कहा वफाकी हुकूमत ओगरा के फैसले पर अमल दरामद से कबल सूबों से मुशावरत करे। ओगरा में सूबों को नुमाइंदगी दी जाए। सिंध हुकूमत ऐसे एक तरफा फैसले की हिमायत नहीं करेगी। पंजाब के किसी शहर में टूटी सड़कें नजर न आए। वजीर आला मरियम नवाज की हुकाम को हिदायत, एक हफ्ते में पंजाब से तजावुजात खत्म करने का हदफ दे दिया। कहा शहरों से खैमा बस्तियां मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल की जाए। सड़कों पर बाइक लेन मुकर्रर करने, चीनी मॉडल के तहत जंगला और छोटी दीवार से अलग करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कब्जा माफिया को पंजाब में खुला फिरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाएं, मंशियात के आदि अफराद नजर न आए। जाली दवाएं बेचने और बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। दौरा चीन बहुत सूदमंद रहा। वजीर सनत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि सोलर, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बड़ी कंपनियों के हुकाम से मुलाकातें की। जदीद ज़राई इंजीनियरिंग से वाबस्ता कंपनी ने पंजाब में ट्रैक्टर असेंबली का प्लांट लगाने में दिलचस्पी भी जाहिर की है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की गवर्नर और वजीर आला सिंध से अलविदाई मुलाकातें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के अवामी खिदमत के मंसूबे को सराहा, काबिल तखलीद करार दिया। मुराद अली शाह से होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। वजीर आला सिंध ने अमरीकी सफीर को अजहर को टोपी तोहफे में दी। मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्द में पारा -7, गिलगित -6, अस्तोर, हुंजार, क्वेटा में -4 तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर में 2, लाहौर में 5 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी के बायस सवात की महोडन झील में पानी जम गया। मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। महकमा तालीम पंजाब ने मौसम सरमा की छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के तमाम स्कूलों में तातीलात 20 के बजाय 23 दिसंबर से होंगी। स्कूल 13 जनवरी से खुलेंगे। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। सियासी और अस्करी क़यादत का शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा लांस नाइक महफूज शहीद ने 1971 की जंग में बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। पूरी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों की मोतरफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा शहीद ने वाघा बॉर्डर पर मिसाली जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को पसपा किया। पूरी कौम को पाक फौज के शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद खौफनाक इंकशाफात। इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त का सिलसिला जारी। दमिश्क से 25 किलोमीटर दूर एक और इज्तिमाई कब्र मिल गई जिसमें हजारों अफराद को दफन किया गया था। जनूबी शाम में अब तक 12 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त की जा चुकी हैं। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा। ताज़ा कार्रवाई में 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी से कमाल उद्वान अस्पताल में आग भड़क उठी। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में सर्विसेज मुअत्तल हो गई। मगरबी किनारे इसराइली फायरिंग से 2 निहत्थे नौजवान लुक़मा अजल बन गए। 24 घंटों में मजीद 36 अमवात के बाद शहदा की मजमूई तादाद 45,059 हो गई। शुमाली गजा में हमास और इसराइली फौजियों में शदीद झड़पें। 3 इसराइली फौजी मारे गए। फलस्तीनी वजारत तालीम का कहना है कि सुहानी फौज 12,799 बच्चों को निशाना बना चुकी। रूस ने अफगान तालिबान का नाम दहशत गर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया। पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। मॉस्को के अफगान तालिबान से ताल्लुकात मामूल पर आने की राह हमवार। शाम में हयातुत तहरीर अल शाम जैसी तंजीम से भी राब्ते कायम हो सकते हैं। स्विट्जरलैंड ने लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह को दहशत गर्द करार दे दिया। स्विस पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। गुज़श्ता हफ्ते हमास पर पाबंदी की भी मंजूरी दी गई थी। स्विस हुकूमत की जानिब से पाबंदी की मुखालफत। चैंपियंस T20 कप में
ڈولفنز اور مارکورس کی ٹیمیں مد مقابل. ڈولفنز کا مارکورس کو 140 رنز کا ہدف. وسیم احمد نے نصف سینچری بنائی. قاسم اکرم نے بھی 31 رن سکور کیے. مارکورس کی بیٹنگ جاری. تمام میچ ای اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. پاکستانی اسکواش پلیئر مہنور علی نے تاریخ رقم کر دی. US اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی. انڈر 13 کے فائنل میں مہنور نے مصری حریف کو 3-1 سے شکست دی. اور سال 2024 کے بہترین فٹ بالر کا ایوارڈ برازیلین کھلاڑی کے نام. وینی جونیئر نے فیفا پلیئر آف دی ایئر کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. ارجنٹائن کے مارٹینس نے بہترین گول کیپر کا ایوارڈ حاصل کر لیا. بہترین کوچ کا ایوارڈ کارلوس انکلوٹی کے نام رہا. اسپین کی آئٹانا بوناماتی نے خواتین کے بہترین پلیئر کا اعزاز اپنے نام